है नायक हेमराज। सिपाही शशि रंजन, आर्मी एयर डिफेंस कोर, 25वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। 6 सितंबर 2023 को सिपाही शशि रंजन कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर संतरी के रूप में तैनात थे। तभी आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत दिखते ही वे आतंकवादियों की ओर आगे बढ़े और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर 2 आतंकवादियों को घायल कर दिया और एक को फर्स्ट लाइट पर मार गिराया। सिपाही शशि रंजन ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना छोटे हथियार से दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। विशिष्ट बहादुरी और अदम्य साहस के लिए सिपाही शशि रंजन को सेना पदक वीरता से सम्मानित किया जाता है। सिपाही शशि रंजन। सिपाही कनेरकर संदीप कृष्णनाथ, मराठा लाइट इन्फेंट्री, 56वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। 26 अक्टूबर 2023 सिपाही कनेरकर संदीप कृष्णनाथ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान में भाग ले रहे थे। अचानक आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई भीषण गोलीबारी के बीच आप रेंगते हुए आगे बढ़े। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए आतंकियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले के बीच आपने एक खूंखार आतंकी को अपने सटीक निशाने से मार गिराया। असाधारण साहस, अनुकरणीय सामरिक कौशल के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सिपाही कनेरकर संदीप कृष्णनाथ। देवियों और सज्जनों, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा यूनिट प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मान उन यूनिटों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ऑपरेशंस, खेल, प्रतियोगिता तथा नागरिक सहायता के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस सम्मान को यूनिटों के कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर ग्रहण करेंगे। 312 फील्ड रेजिमेंट, कर्नल पंकज शर्मा, सूबेदार मेजर प्रवीण कुमार। (1871) फील्ड रेजिमेंट, कर्नल खेम सिंह रावत, सूबेदार मेजर अरुणजीत एस। (13th बटालियन) द ग्रेनेडियर्स, कर्नल सोमेंद्र कुमार, सूबेदार मेजर अजय कुमार सिंह। (3rd बटालियन) द जाट रेजिमेंट, कर्नल अमित कुमार भट्ट, सूबेदार मेजर धर्मपाल सिंह। (20th बटालियन) द जाट रेजिमेंट, कर्नल चंद्रकांत शर्मा, सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट विनोद कुमार। (3rd Battalion, the Dogra Regiment, Colonel Sandeep Singh Pathania, Sena Medal, Subedar Major Vinod Kumar. (4th Battalion, the Garhwal Rifles, Colonel Preetam Singh, Kirti Chakra, Subedar Major Khilap Singh. (10th Battalion, the Garhwal Rifles, Colonel Yashavardhan Sinwal, Subedar Major Kuldeep Singh Rawat.
16th Battalion, the Kumaon Regiment, Colonel Vikram Shekhawat, Subedar Major Govind Singh. Tenth Battalion, the Jammu and Kashmir Light Infantry, Colonel Vijay Singh Dhatwalia, Subedar Major Magar Singh. (103) Engineer Regiment, Colonel Mukul Tiwari, Subedar Major Balkrishna Chabut Sinde. (659) Army Aviation Squadron, Recce and Observation, Colonel Anuj Sharma, Subedar Major Umesh Thakur. (16th Battalion, the Assam Rifles, Colonel Sandeep Sharma, Subedar Major Ramchandra Engti. (22nd Battalion, the Assam Rifles, Colonel Kartik Thapa, Subedar Major Satish Chandra. (27th Battalion, the Assam Rifles, Colonel Santosh Rawat, Sena Medal, Subedar Major Kishan Ram Tamta. (36th Battalion, the Assam Rifles, Colonel R. Naveen Kumar, Subedar Major Govardhan Lal Gurjar. (11th Battalion, the Madras Regiment, Colonel C. Karthikeyan, Subedar Major Sannyasi Banta Naidu. (17th Battalion, the Jat Regiment, Colonel Ashish Sajgotra, Sena Medal, Subedar Major Suresh Kumar. (20th Battalion, the Kumaon Regiment, Colonel Sandeep Kumar Punia, Subedar Major Hukam Singh. (57) Armored Regiment, Colonel Varun Segan, Risaldar Major Sanjeev Singh. (11th Battalion, the Brigade of Guards, Colonel Ahmed Anbarullah Khan, Subedar Major Honorary Lieutenant Ramandeep. (43) Field Regiment, Colonel Kuldeep Kumar Sharma, Subedar Major Ratan Singh. (74) Field Regiment, Colonel Bijendra Prasad Singh, Subedar Major Praveen Kumar. (9th Parachute Field Regiment, Colonel Gautam Lamba, Subedar Major Charmal Bharat Suryaphan.
9th Battalion, the Parachute Regiment, Special Forces, Colonel Anup Singh, Subedar Major Padam Subba. Battalion, the Grenadiers, Colonel Atul Singh, Subedar Major Ashish Kumar Singh. Twelfth Battalion, the Garhwal Rifles, Colonel Raghuvendra Kumar, Subedar Major Khilap Singh. Twelfth Battalion, the Kumaon Regiment, Colonel Bipin Saklani, Subedar Major Vijay Kumar Yadav. Second Battalion, the Bihar Regiment, Colonel Saurabh Sirohi, Sena Medal, Subedar Major Kamlesh Kuvar. Battalion, the Mahar Regiment, Colonel Prakash Kumar Singh, Sena Medal, Subedar Major Anil Kumar. Third Battalion, the Jammu and Kashmir Light Infantry, Colonel Pushparaj, Subedar Major Tariq Ahmed Shah. Fifth Battalion, the Ladakh Scouts, Colonel Saurabh Singh Kathayat, Subedar Major Honorary Lieutenant Sevang Norbu. '63 Engineer Regiment, Colonel Vikrant Bora, Subedar Major Brijendra Kumar Singh. '22nd Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Vijit Kumar, Sena Medal, Subedar Major Tilak Raj. '44th Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Jaspreet Singh, Subedar Major Sanjeev Kumar. '56th Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Rajat Kumar Burman, Subedar Major Bhosle Sahuraj Narayan. '7 Vikas, Colonel Ravi Sharma, Political Leader Funsok Sering. अब सेनाध्यक्ष महोदय द्वारा वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। ये अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वेटरन्स के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस श्रेणी में सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल एल मनोंगवा रिटायर्ड। आपने राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण दिखाते हुए नॉर्थ ईस्ट में 3500 भूतपूर्व सैनिकों का एक संगठन बनाया है जो समाज सेवा के विभिन्न कार्यों से जुड़ा है। विंग्स ऑफ होप नामक आपकी संस्था कई विधवाओं और बच्चों की मदद करने में भी जुटी है। लेफ्टिनेंट कर्नल एल मनोंगबा रिटायर्ड। कर्नल सोमबीर सिंह मुंडालिया रिटायर्ड। आप वर्तमान में थल सेना मुख्यालय के वेटरन्स विभाग में सेवारत हैं, जहां आप भारतीय सेना की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
कर्नल सोमबीर सिंह मुंडालिया रिटायर्ड। कर्नल राजेश भूकर रिटायर्ड। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने राजस्थान सैनिक कल्याण विभाग, स्टेट एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी कई संस्थाओं से जुड़कर वेटरन्स के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अंदर आपने लगभग 5000 वेटरन्स को रोजगार प्रदान करने के अलावा कई युवाओं के शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कर्नल राजेश भूकर रिटायर्ड। सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट पी रिजू रिटायर्ड। आप यूथ फॉर कॉर्पोरेट इंडिया नामक संस्था के माध्यम से युवाओं को भारतीय सेना में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आपके अनेकों छात्र भारतीय सेनाओं एवं अन्य सरकारी विभागों में उच्च पदों पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट पी रिजू रिटायर्ड। हवलदार अब्दुल राशिद वार रिटायर्ड। आप जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां आपने वेटरन्स एवं वीर नारी के कल्याण में महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रीनगर की डल झील की सफाई, रक्तदान शिविर जैसे अनेकों अद्भुत प्रयासों में भी आपकी अहम भूमिका रही है। हवलदार अब्दुल राशिद वार रिटायर्ड। देवियों और सज्जनों, सेना अध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों की श्रृंखला यहां समाप्त होती है। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के माध्यम से अपना सम्मान प्रकट कर इन सभी यूनिटों, सभी सम्मान प्राप्तकों, वीरों, वीर नारियों को सम्मानित करें। यह क्षण इन सभी के लिए बहुमूल्य है और आपकी तालियों की गूंज इस क्षण को अमर कर देगी। अब हम जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे 77वें सेना दिवस परेड 2025 के इस गौरवशाली वीरोत्सव पर परेड को संबोधित करें। जय हिंद। भारतीय थल सेना दिवस 2025 के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंक्स, उनके परिवारजन, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, सिविल रक्षा कर्मियों तथा यहां पर उपस्थित सभी अतिथिगण, शामिल एक्स चीफ्स, फॉरेन डिग्निटरीज एवं मीडिया जगत के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम उन वीरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया। उनके बलिदान और शौर्य की गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवारजनों को आश्वस्त करता हूं कि वह सैन्य परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। मैं आज परेड में भाग ले रहे सभी रैंक्स को अनुशासन, कड़ी मेहनत और अच्छे प्रदर्शन के लिए शाबाशी देता हूं। साथ ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाली यूनिट्स और व्यक्तिगत अवार्ड्स विजेताओं को भी
उनके उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। वर्ष 2023 से हमने थल सेना दिवस परेड और उससे जुड़े अन्य कार्यक्रमों को दिल्ली से बाहर देश के अन्य शहरों में आयोजित करने की प्रथा शुरू की है। 77वें सेना दिवस परेड का आयोजन पुणे में होना एक विशेष महत्व रखता है। यह क्षेत्र मराठा साम्राज्य के समय से सैन्य वीरता और संघर्ष का प्रतीक रहा है। भारतीय सेना के कुछ प्रमुख सैनिक संस्थान यहां पर स्थित हैं और साथ ही पुणे में स्वदेशी सैन्य उपकरणों का अनुसंधान, विकास और निर्माण भारी मात्रा में किया जाता है। हमें गर्व है कि इस क्षेत्र ने हमें 4 सेनाध्यक्ष और 48 चक्र सीरीज पदक से सम्मानित वीर सैनिक दिए हैं। इसलिए पुणे में सेना दिवस समारोह का आयोजन हमारे लिए केवल एक अवसर नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत से हमारे गहरे संबंध का प्रतीक है। मुझे गर्व है कि पिछले 1 वर्ष में हमारे प्रत्येक सैनिक ने अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वह सीमाओं की सुरक्षा में हो, दुर्गम इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम में तैनाती के दौरान हो या प्राकृतिक आपदाओं में मानव राहत और बचाव कार्य के दौरान हो, इन सभी को पूरी निष्ठा और कार्यकुशलता से निभाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी हम उसी लगन और संकल्प से देश की सेवा में समर्पित रहेंगे। उत्तरी सीमाओं पर हालात स्थिर हैं, लेकिन साथ ही संवेदनशील भी हैं। हमारी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। उत्तरी सीमाओं पर आधुनिक उपकरणों और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में खास ध्यान दिया गया है। पश्चिमी सीमाओं के लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर बना हुआ है, लेकिन घुसपैठ के प्रयास जारी हैं। जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों में सुरक्षा बलों के लगातार कड़े प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में काफी कमी आई है। गए साल पार्लियामेंट, असेंबली इलेक्शंस और अमरनाथ यात्रा का शांतिपूर्वक संपन्न होना सुरक्षा स्थिति में सुधार को दर्शाता है। भारत के इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को प्रबल बनाने के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों में भी भारतीय सेना के प्रयासों से स्थिति पर काबू पाने में सफलता मिल रही है। संवेदनशील व कठिन माहौल में हमारे जवानों ने संयम और परिपक्वता से कार्य करके अहम भूमिका निभाई है और इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे। आज हमारा देश एक नए युग की कगार पर खड़ा है और एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर सुचारू रूप से प्रगति कर रहा है। हमारे देश को प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर रहने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण आवश्यक है, जिसको अंजाम देने में भारतीय सेना की अहम भूमिका है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने एक डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन के दशक के रोड मैप की व्यापक रूपरेखा तैयार की है। इस परिवर्तन का उद्देश्य हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना और हमारी फंक्शनल तथा एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता को बढ़ाना है। साथ ही वर्ष 2025 में हम अपना ध्यान ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो रक्षा मंत्री जी ने नियत किया है और ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन पर केंद्रित करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी भारतीय सेना को एक मॉडर्न, एजाइल, एडेप्टेबल, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और भविष्य के लिए सक्षम फोर्स बनाने के लिए प्रगति पथ पर अग्रसर रहेंगे। भारतीय सेना में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। महिलाओं का चयन केवल अधिकारी पद पर ही नहीं, बल्कि अग्निवीर महिला के रूप में भी हो रहा है। आपने उनके उत्साह और साहस का प्रदर्शन इस भव्य परेड में भी देखा है। भारतीय सेना अपने जवानों और महिला सैनिकों, उनके परिवारों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी से पूर्णतया अवगत है। उनके लिए कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना, योजनाओं को उन तक सक्रिय रूप से पहुंचाना और उनकी मुश्किलों का समाधान करने की हमारी कोशिशें निरंतर जारी रहेंगी। मैं भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के बहुमूल्य प्रयासों और योगदान के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने सदैव हमारे संचालन एवं प्रशिक्षण के दौरान सहायता की है। मुझे विश्वास है कि तीनों सेनाएं देश के प्रत्येक नागरिक के साथ मिलकर राष्ट्र के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला करके देश के लिए हमेशा जीत हासिल करेंगी। यहाँ पर
मैं विशेष उल्लेख हमारे घनिष्ठ मित्र देश नेपाल से आए बैंड के दस्ते का करना चाहूंगा, जो आज की परेड के दौरान अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से हम सबको मोह मुक्त करेंगे। भारतीय सेना ने देश के नागरिकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। देशवासियों का हम पर भरोसा और बेजोड़ प्रोत्साहन हमारे संकल्प और प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाता है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना एक प्रशिक्षित और युद्ध अनुभवी सेना है, जो राष्ट्र के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। साथ ही विकसित भारत 2047 के तहत राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय सेना निरंतर अग्रसर रहेगी। आज सेना दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंक्स और पूर्व सैनिकों को यह अनुदेश देना चाहूंगा कि नाम, नमक और निशान की आधारशिला पर कायम हमारी परंपरा अनुसार देश की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित होने का प्रण लें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। आपका प्रेरणादायक और सैन्य मार्गदर्शन सभी सैनिकों को सदैव उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। अब वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जब भारतीय सेना के गौरवशाली दस्ते मार्च पास्ट करते हुए सलामी मंच से गुजरेंगे और पुणे में एक नया इतिहास रचेंगे। आज की यह भव्य परेड संदेश लेकर आई है अंतर सेना समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन का, जो समर्थ भारत और सक्षम सेना की ओर एक प्रयास है। और आप देखेंगे सैन्य शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन। अपने अपने रेजिमेंट और कोर की सेरेमोनियल वर्दियों में मार्चिंग दस्ते महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करता कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का महिला सैन्य दस्ता और एनसीसी गर्ल्स कंटिंजेंट, नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी के मिलिट्री बाइक्स, बैंड्स एंड ड्रम्स की ओजस्वी धुनें, T90 भीष्म की दहाड़, K9 वज्र की गर्जना, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग जो इन्फेंट्री को अटूट समर्थन प्राप्त करता है, वही समर्पण जो भगवान राम को बजरंग बली हनुमान से मिला। स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल कपि ध्वज अर्जुन के पौराणिक रथ का आधुनिक अवतार, चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता का प्रतीक। ऑल टेरेन व्हीकल चेतक महाराणा प्रताप के साहसी अश्व से प्रेरित, युद्ध भूमि में अप्रतिम गति और वायु वेग का प्रतीक। व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम ऐरावत
भगवान इंद्र के दिव्य वाहन की छवि लिए हुए, जो धरती और आकाश में सैन्य संचालन की श्रेष्ठता और सटीकता का द्योतक है। और अंत में रोबोटिक मूव्स शर्वरा, यमराज के पौराणिक प्रहरी श्वान से प्रेरित, देखने में मासूम परंतु कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता और निष्ठा का परिचायक। Ladies and gentlemen, now that you have a glimpse of what this grand parade entails, let's explore the themes that bring it to life. A Samarth Bharat, a strong and capable India, rests on the shoulders of a Saksham Sena, an empowered army. Samarth Bharat provides the vision and framework, while Saksham Sena becomes the action-oriented force, creating a symbiotic relationship, accelerating India's journey towards self-reliance and prosperity. Today we stand in awe of the indomitable spirit of our armed forces, their Sainya Shakti, the power that defends our motherland, and their Shaurya, the unparalleled bravery. As Atmanirbhar Bharat, we have achieved groundbreaking progress in self-reliance, reducing dependence on external sources. The Indian Armed Forces stand as a symbol of unity and strength, with seamless integration of the tri-services. Together they embody the spirit of jointmanship. In today's parade, ladies and gentlemen, we will also witness a symphony of strength, resilience and grace, with two all-women marching contingents, the armed forces, sculpting an ode to Nari. परेड अपने पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए, कंधों पर सैन्य उत्तरदायित्व, आंखों में वर्षों के सैन्य अनुभव की चमक, सेना की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। परेड कमांडर मेजर जनरल अनुराग विज। देवी और सज्जनों, कृपया अपना ध्यान परेड कमांडर की जिप्सी की दिशा में सुदूर आकाश में ले जाएं। अब से कुछ ही क्षणों में 665 और 669 आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स आप पर आपके सम्मान में पुष्प वर्षा करेंगे। और परेड कमांडर मेजर जनरल अनुराग विज का सैल्यूट। ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार। The air is now charged with celebration and patriotism. Ladies and gentlemen, behold the pride of the marching contingents, heads held high, spirits unyielding, approaching the dais, the mechanized infantry led by Captain Ankit Singh, the cutting-edge force of the Indian Army, marching past the saluting dais, motto, valor and faith, representing strength and resilience. Known for their speed, agility and firepower, they specialize in rapid mobility and modern warfare. Ladies and gentlemen, the warriors who ensure dominance on the battlefield. सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मार्चिंग दस्ता मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का, और इनके ठीक पीछे सलामी मंच की ओर अग्रसर है मद्रास रेजिमेंट अगला दस्ता। कमान कैप्टन कमल चौधरी, 21 मद्रास के सुदृढ़ हाथों में। रेजिमेंट का नारा वीर मद्रासी अलिकुलु अलिकुलु अलिकुलु, मतलब बहादुर मद्रासी हमला करो और मार डालो। रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह हाथी, साहस, दूरदर्शिता, ताकत, आत्मविश्वास, आज्ञाकारिता का प्रतीक। और इनके ठीक पीछे वीर मराठाओं का दस्ता, द मराठा लाइट इन्फेंट्री, निडरता के प्रतीक। अगुवाई कैप्टन सूरज पंडित, 15 मराठा लाइट के हाथों में। ड्यूटी, ऑनर, करेज, कर्तव्य, मान, साहस इनका मोटो। बोलो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय इनका युद्ध घोष। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए Marching forward with pride, the regiment of artillery, the firepower of the Indian Army, led by Lieutenant Vinay Rao. Known for their precision and strength, they live by their motto, Sarvatra Izzat-o Iqbal, everywhere with honor and glory. The gods of war ensuring victory through fire and steel, carrying the legacy of countless sacrifices and victories, wearing the distinctive red and blue with pride.
Ladies and gentlemen, the Regiment of Artillery. Marching forward, the proud Bombay Engineer Group and Center, led by Lieutenant Lakshay Kumar, the Bombay Sappers, pioneers of innovation embodying endurance. Naam Namak Nishan, yahi hai hamari pehchan, motto sarvatra everywhere. Marching on, their heads turned in unison with the crisp eyes right, displaying respect and discipline. The BGN Center, one of the oldest regiments of the Indian Army, with the unique distinction of winning the highest awards for bravery. Approaching the saluting desk next, the Army Ordnance Corps, led by Captain Keshav Kumar, motto, strength through arms, Shastra se Shakti. The backbone of the Indian Army's logistics, the rhythmic sound of their boots, a reminder of unwavering dedication. The sustainers of the battlefield, enabling operational readiness, embracing modern warfare, technology and innovation. Together, they embody the essence of pride and purpose. Arms swinging in rhythm with the soldier's gaze, displaying respect and discipline. और अब सलामी मंच की तरफ बढ़ रही हैं कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का महिला दस्ता कैप्टन संध्या और कैप्टन शरण्या राव के नेतृत्व में भारत के उस दृष्टिकोण को साकार करता जिसमें महिलाएं मातृभूमि की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। मस्तक पर चमक, माथे पर आत्मविश्वास, सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए देवी और सज्जनों जोरदार तालियों के साथ इनको सम्मानित करें। और इनके ठीक पीछे सीनियर अंडर ऑफिसर नैना रावत, एनसीसी गर्ल्स कंटिजेंट की टुकड़ी, युवा ऊर्जा और सशक्त भारत का प्रतिबिंब, अनुशासन और देशभक्ति की प्रतिमूर्तियां। इनके हर कदम में शक्ति, सशक्तिकरण की अद्वितीय गूंज है। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ नेपाल आर्मी का बैंड। कुछ ही समय में हमारे बीच नेपाल आर्मी का बैंड होगा। भारतीय सेना का बैंड सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ सूबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के नेतृत्व में। इस बैंड में सम्मिलित हैं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, बीईजीएन सेंटर, गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर, एएससी सेंटर, सीएमपी सेंटर, पैरा रेजिमेंटल सेंटर के मिलिट्री बैंड्स। एक सशक्त सैल्यूट। परेड ग्राउंड में फिजाओं में मिठास घोलता यह बैंड और अब राष्ट्रीय सुरक्षा की हुंकार। थोड़ी ही देर में सलामी मंच की ओर माउंटेड कॉलम भारतीय सेना का फौलाद लौहपल अपना ध्यान सलामी मंच की ओर ले जाए। देवी और सज्जनों, प्रबल प्रबुद्ध प्रचंड प्रभावी मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म अपना ध्यान आसमान की ओर ले जाए। अब चेतक हेलीकॉप्टर लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण पराशर के नेतृत्व में कॉम्बैट टीम को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता।
well mechanized infantry के नेतृत्व में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स सारंग एक शक्तिशाली आयुध और रात में लड़ने की क्षमता वाला एक उच्च गतिशील इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है। 30 मिलीमीटर कैनन और आकाश को भेजने वाला 7.62 एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक मिसाइल से भी लैस थर्मल इमेजिंग सिस्टम, हाल ही में सुसज्ज स्मोक स्क्रीन धुएं के गोले से शत्रु की आंखों में धूल झोंक सकता है। 300 हॉर्स पावर इंजन से चलता 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 0.7 मीटर की बाधाएं इसे रोक नहीं सकती। और अब ले जाऊं लाइट स्ट्राइक व्हीकल स्पेशल फोर्सेस नेतृत्व नायब सुबेदार प्रदीप कुमार रेड पैरा स्पेशल फोर्सेस के हाथों लाइट स्ट्राइक व्हीकल डेजर्ट पेट्रोल व्हीकल का उन्नत संस्करण निर्माण भारत में फोर्स मॉडल द्वारा उच्च गतिशीलता और छोटे आकार के लिए अपनाया गया। अभी आप देख सकते हैं पैराशूट ट्रीटमेंट स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज असंभव से भी आगे निकलना जानते हैं। ये जाबाज इनका उपयोग हिट एंड रन शैली के छापे स्काउटिंग मिशन के लिए लाइट स्ट्राइक व्हीकल स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। आंतरिक रूप से ट्रांसपोर्टेबल लाइट स्ट्राइक व्हीकल का हिस्सा स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल कमेंट मार्च इको मोटर्स द्वारा भारत में निर्मित भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता हुआ सभी क्षेत्रों में गतिमान जो भारत की रक्षा क्षमताओं में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके विशाल अल्ट्रा लो प्रेशर टायर्स दलदल, बर्फ, बजरी और यहाँ तक कि पानी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये एक उबड़-खाबड़ इलाकों, ऊंची बर्फीली चोटियों एवं आपदा राहत कार्यों के लिए एक अमूल्य वाहन है। लेड बाय सुबेदार कलप्पा चंद गढ़कर ऑफ 17 पैरा लाइट इन्फेंट्री और देवी और सज्जनों उसी के ठीक पीछे लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है that operates the spike missile system with matching mobility. It is designed to be helicopter portable and maneuverable over cross-country terrain. It assists in destroying the explosive reactor power placed on tanks. It is led by Subedar Sanjay Kumar of 23 Rajput Regiment. नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, लिए इरादे बड़े बड़े हम, नई शक्ति कर रहे वर्ण हम। और अब सलामी मंच की ओर नायब सुबेदार शैलेंद्र सिंह तोमर 17 राजपूताना राइफल्स के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की याद दिलाता सरपट भागने में सक्षम, समय से तेज और घड़ी से आगे। ऑल टेरेन व्हीकल सभी इलाकों में चलने वाला सामरिक वाहन चुनौतीपूर्ण इलाके में गतिशील और युद्धक लक्ष्य को हासिल करने में विभिन्न मिशन पूरा करने में सक्षम भारतीय सेना के ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। और एनावत व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम नायब सुबेदार रानोजी बिरजे 8th मराठा लाइट इन्फेंट्री के नेतृत्व में बहुमुखी हथियार प्लेटफॉर्म, बेहतर और सटीक फायर के लिए एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर से सुसज्ज 8.2 किलोमीटर तक की रेंज के साथ 8 राउंड फायर करने में सक्षम, 2 मिनट में स्थान बदल सकते। और अब आप देख सकते हैं इस्लामी मंच की और बड़ी शान से बढ़ता हुआ शक्तिशाली स्वदेशी हथियार प्रणाली पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम DRDO द्वारा विकसित भारत में ही निर्मित बहुनाल रॉकेट लॉन्चर है। ये किसी भी वातावरण में काम करने में सक्षम है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर तक की है। यह टाटा ट्रक पर तैनात होता है। दुर्गम पहाड़ी की चोटियों पर दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त करने में सफल पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट को सटीकता से दाग सकता है। लेड बाय नायब सुबेदार मोहन लाल। और अब देवी और सज्जनों ड्रोन जैमिंग सिस्टम एक किसी भी दिशा से 10 किलोमीटर तक की दूरी तक ड्रोन का व्यापक पता लगाने और उसे तीव्र गति से जाम करके नीचे गिराने की क्षमता रखता है। ये हर क्षेत्र में शीघ्रता से तैनात करके दुश्मन के नापाक इरादों को विफल करने में सक्षम है। अतः ये मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के साथ एकीकृत हो जाता है। लेड बाय मेजर इंद्रपाल सिंह of 13 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन। और देवी और सज्जनों उसी के ठीक पीछे इस्लामी मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ मोबाइल संचार नोड जो कि युद्ध क्षेत्र में संचार प्रदान करता है। यह नोड तीव्र गति वाहन पर स्थित है। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम से लैस यह नोड आर्मी डाटा नेटवर्क को टैक्टिकल संचार ग्रिड से जोड़कर सेना की अग्रिम इन्फॉर्मेशन को संचार प्रदान करता है। लेड बाय मेजर अनीशा सू हमें तीव्र चौकस टीम डटे हैं फौलादी इरादे लिए। आंधियां आए तो सही, दुश्मन आए तो सही, ये राम मेरा
मेरा चमन कोई आंख उठाए तो सही। यत्र तत्र सर्वत्र प्रभावी सर्वत्र ब्रिज प्रणाली स्वदेशी रूप से आर्ममेंट कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम डीआरडीओ द्वारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर और अन्य प्राइवेट भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलकर नेतृत्व कर रहे हैं 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के नायब सूबेदार मिथिलेश कुमार एक व्हीकल माउंटेड मल्टी स्पैन मैकेनिकली लॉन्च्ड मिलिट्री लोड क्लास 70 असॉल्ट ब्रिजिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल असॉल्ट इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑपरेशन के दौरान करती है। और अब सेना सेवा कोर की घुड़सवार टुकड़ी सलामी मंच की ओर कमान संभाले लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस नेगी। घुड़सवार टुकड़ी ने कई गणतंत्र दिवस और सेना दिवस परेड का हिस्सा होने का सम्मान पाया। इन घोड़ों ने भारतीय सेना को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। Ladies and gentlemen, now we present the vibrant tableaus, a visual celebration of progress, patriotism and pride. देवी और सज्जनों, सेना दिवस परेड में पहली बार विभिन्न टैबलोज को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला में मिशन ओलंपिक को दर्शाती पहली झांकी मंच की ओर अग्रसर। पिछले कुछ वर्षों में हमारे शूरवीर सैनिकों ने ओलंपिक एवं पैरालंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर देश के परचम को ऊंचा और ऊंचा किया है। खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया के भूत युवाओं की खेल प्रतिभा को तराश कर उन्हें भरपूर अवसर प्रदान करना सेनाध्यक्ष की प्राथमिकता है। आप देख सकते हैं झांकी के ठीक पीछे आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी के युवा हमारे भविष्य के ओलंपिक विजेता भी आज यहाँ शिरकत करते हुए ओलंपिक के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए भारत के युवा देश का परचम लहराने के लिए तैयार है। आइए जोरदार तालियों से इन युवाओं का अभिवादन करें। और इसके ठीक पीछे देवी और सज्जनों अगली झांकी वेटरन्स टैब्लो मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जी हां, मंच की ओर आगे बढ़ती अगली झांकी हमारे सर्वदा प्रतिबद्ध वेटरन्स की, वो पथ प्रदर्शक जिनका सेना को सक्षम बनाने में अतुलनीय योगदान रहा है और आज भी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा इसी पृष्ठभूमि पर आधारित इस झांकी में सैन्य सेवा के दौरान उनके राष्ट्र रक्षा में समर्पण के अलावा वेटरन्स के रूप में उनके योगदान को भी दर्शाया गया है। अंतिम भाग इन शूरवीरों के बलिदानों की गौरव गाथा बयां करता है। आइए तालियों से अपना सम्मान प्रकट करें हमारे इन सूरमाओं के प्रति। As the parade winds through, the net zero tableau emerges a vivid and thought-provoking representation of India's commitment to a sustainable future, showcasing the role of the Indian Army as ecological warriors. The tableau emphasizes India's commitment to net zero carbon emission by the year 2070, aligning with global climate goals. The tableau embodying harmony between progress and preservation, imploring every Indian to join in the journey towards the net zero future to rejuvenate the lungs of India. The net zero tableau, ladies and gentlemen, in all its green glory, reminding everyone that achieving sustainability is a shared responsibility. Behold the wonders of innovation where tech meets imagination. Up next, the Tech Infusion Tableau, fabricated by 512 Army Base Workshop, led by Major Shubham Sharma. This tableau depicts the technological transformation underway in the Indian Army. The Indian Army, now a future-ready force equipped with niche technologies like space tech, artificial intelligence, robotics, quantum tech, operational infosystems, drone and counter-drone tech, loiter munitions and simulation tech. The logistic drones, seen as part of the tableau, carrying the national flag and the Indian Army flag, are manufactured by Rafe M Fiber. Rolling in close formation behind is the incredibly versatile Sarv Drishti Rudra Rakshak system, developed by the Territorial Army Innovation Cell, led by Major Jay Upadhyay, an integrated all-terrain mobile platform with AI-enabled long-range surveillance, automated offensive drones, and dedicated defensive counter-drone capability. Following the SDRR is a vehicle-based VSAT system led by Lieutenant Colonel Geeta Sharma. Hovering over the tableau is a swarm of 24 drones showcased in 2 groups of 12. The first swarm handles recce and target designation, while the second focuses on attack and damage assessment. A striking feature of these is that their roles are interchangeable, developed by new space research technologies flown by the team of One Horse of the Indian Army.
मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। और अब सशक्त कदमों से मंच के आगे अगला दस्ता हमारे रोबोटिक म्यूल्स का। समर्थ भारत की सशक्त सेना के स्वावलंबन को प्रतिबिंबित करते ये तकनीकी योद्धा, जिन्हें शर्बरा नाम दिया गया है। हमारे शास्त्रों में शर्बरा नाम जुड़ा है काल से, दुश्मन के विनाश से। आप देखेंगे किस प्रकार एक अनुशासित सैनिक की भांति चुस्त कदमों से मंच के आगे रुकने के बाद ये तकनीकी सैनिक दाहिने मुड़ की कार्रवाई करते नजर आएंगे। मुख्य अतिथि को सम्मान सूचक सल्यूट। जोरदार तालियों से देवी और सज्जनों आइए अभिवादन करें आत्मनिर्भरता के इन सशक्त कदमों का। हमने देखा इन तकनीकी योद्धाओं की ड्रिल का एक दुरुस्त नमूना। इन रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा मुश्किल इलाकों में लॉजिस्टिक एवं इंटेलिजेंस सपोर्ट के अलावा ऑपरेशनल मिशंस में भी किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, स्वदेश निर्मित शर्वरा के शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद आज की परेड में आप सबके समक्ष अपनी जोशीली और ओजस्वी धुनों से मित्रता, सौहार्द और भारत नेपाल सांस्कृतिक विरासत का संदेश देने के लिए हमारे साथ है नेपाल आर्मी का बैंड। दोस्ती की मिठास को अनुभव कीजिए। लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल की अध्यक्षता और मेजर बिमल कार्की के निर्देशन में 32 सदस्यीय बैंड, जिसमें 3 महिला सैनिक भी शामिल हैं। देवी और सज्जनों, मित्र राष्ट्र से आए हमारे इन मेहमानों का तालियों से अभिनंदन कीजिए। अभी यह बैंड जिस धुन को बजा रहा है वह है रातों रात चंद्र सूर्य जंगी निशान थाम लो, जो लाल रंग चांद और सूरज का प्रतीक नेपाल के राष्ट्र ध्वज पर साहस, शौर्य और सहजता का प्रतीक है। पर्वत शिखरों की छाया जहां स्नेह गहराता है, भारत नेपाल का बंधन सदियों युगों को निभाता है। शौर्य, संस्कृति और सहयोग की अनूठी छवि, 2 राष्ट्रों का यह प्रेम सदैव अमिट, सदैव नवी। प्रेम, सौहार्द का प्रतीक ये मिलिट्री धुन है। और देवियों सज्जनों, वक्त हो चला है एक मधुर ध्वनि, हाईलैंड कैथेड्रल, एक प्रसिद्ध स्कॉटिश धुन जो बैगपाइप के लिए रचित है और सम्मान, एकता और गौरव को दर्शाती है। हर लय सैनिकों के आत्मबल और प्रतिबद्धता को प्रेरित करती है। मार्च में हाईलैंड कैथेड्रल, स्कॉटिश धुन, बैगपाइपर्स का अनोखा प्रदर्शन। देख सकते हैं नेपाल का ध्वज बनाते हुए स्क्रीन पर आप सबके सामने अपने देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक, एकता का प्रतीक। और देवी और सज्जनों, अब
संपूर्ण राष्ट्र के, पूरे भारतवर्ष के सम्मान में नेपाल आर्मी द्वारा भारतीय सेना का अमर गीत कदम कदम बढ़ाए जा, राम सिंह ठाकुरी द्वारा रचित। अब से कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कैसे ये टुकड़ी आई और एन शब्द इंडिया एंड नेपाल की आकृतियों को बनाते हुए जो दोनों देशों के मधुर संवाद, अटूट मित्रता, दो परंपराओं और सैन्य सामंजस्य का प्रतीक है INN। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से सम्मान करें हमारे मित्र राष्ट्र के सैनिकों का। और अब AR रहमान द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध गीत जय हो, जो ऑस्कर विजेता फिल्म से लिया गया है, हर लय ऊर्जा और उत्साह से भरपूर। बेहतरीन सैन्य धुन। और अब वक्त है एक ऐसी धुन का जो आप सबके दिल को मोह लेगी। यो नेपाली सिर उचाली संसार मा लमकंचौ, जो संदेश देता है कि नेपाली गर्व से विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे। और इस धुन के साथ अपने आप को व्यवस्थित करते हुए यह बैंड हम सबसे विदा लेगा। सलामी मंच की तरफ बढ़कर ऑफिसर को एक सशक्त सैल्यूट देते हुए हिमाद्री की शीतलता का, गंगा की गंभीरता का, भारत नेपाल का नाता है अमर स्थिरता का। आज वीरता, संस्कृति और श्रद्धा का यह शुभ संयोग युगों युगों तक रहेगा, यह अडिग सहयोग। देवी और सज्जनों, तालियों से सम्मान करें। देवी और सज्जनों, ये थे मित्र देश नेपाल के शूरवीर अपनी स्वर लहरियों से सेना दिवस 2025 में अपनी गौरवशाली उपस्थिति दर्ज कराते हो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। मंच की ओर अग्रसर ब्रिगेडियर परमजीत सिंह ज्योति, परेड सेकंड इन कमांड। देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व करते भारतीय सेना के शूरवीर सैनिक आज यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर उकेरते हुए, और इसी बीच सेकंड इन कमांड मुख्य अतिथि को सम्मान सूचक सैल्यूट करते हुए, इस सैल्यूट में गर्व है अपने सैन्य धर्म के उत्कृष्ट निर्वहन का, जुनून है अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज की परेड के उच्च मापदंड सुनिश्चित करने का, कृतज्ञता है उन शूरवीरों के प्रति जिन्होंने आज की अनुशासित परेड का
इतिहास रचा। और अपना ध्यान सामने मिलिट्री बैंड्स पर ले जाएं। अपनी राष्ट्रवादी धुनों से परेड में नई ऊर्जा का संचार करने वाले बैंड सूबेदार मेजर प्रकाश चंद जोशी के नेतृत्व में प्रस्थान करते हुए इसमें शामिल मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एवं सेंटर, गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर, आर्मी सर्विस कोर्स सेंटर, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर के मिलिट्री बैंड, साथ ही सूबेदार एसपी चौरसिया के नेतृत्व में पाइपर्स और ड्रमर्स, जिसमें शामिल है आर्टिलरी सेंटर, 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एवं सेंटर, महार रेजिमेंटल सेंटर के पाइपर्स और ड्रमर्स। आज की भव्य परेड जिसमें देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव, प्रेम, बंधुत्व की भावना जिस ओजस्विता, तेजस्विता, प्रखरता एवं प्राणवत्ता के साथ व्यक्त हुई है, वह राष्ट्र गौरव को दर्शाती है। त्याग, शौर्य, साहस, रण कौशल, रणवीरों का याद रहे। शस्त्र से श्यामल धरा हमेशा आभूषित आजाद रहे। राष्ट्र प्रेममय जीवन शाश्वत, राष्ट्र प्रेम रत प्राण रहे। समर्थ भारत की अधिनायक ये सक्षम सेना महान रहे। समर्थ भारत की अधिनायक ये सक्षम सेना महान रहे। Steel and soul, together they marched. The soldier's heart, the engine's might, united they stand to guard the fight. Man and machine, a flawless team, defending a nation, a shared dream. Ladies and gentlemen, freedom is earned with courage and sacrifice. Let us never forget the heroes who made this day possible. Oh, brave hearts, we know your story carved in stone, of battles fought, of lives unknown. Through whispers carried on the breeze, your sacrifices still speak with ease. Oh, guardians bold in endless sleep, your legacy we vow to keep. With every bloom a pledge we weave, to honor, remember, and never to grieve. देवी और सज्जनों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेनाध्यक्ष महोदय की तरफ से हम सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने परेड की शोभा बढ़ाई। हम सब भारतीय सेना, साहस जिसकी है धरोहर, भविष्य का है दर्पण। साइबर क्षेत्र में महारत से लेकर रणनीतियों को एक नया आयाम देने तक, अत्याधुनिक तकनीक से लेकर अटल विश्वास तक, हमारा हर कदम सुनियोजित, हर चाल निर्णायक, अदम्य जोश, अद्वितीय ताकत, असीमित प्रगति। भारतीय सेना, भविष्य के निर्माता। देश कदम बढ़ा रहा है 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने की ओर। सुरक्षा आधार है निर्बाध प्रगति का, और भारतीय सेना एक सच्चे पहरेदार की तरह वादा करती है हर बाहरी और अंदरूनी खतरे से सुरक्षा का। आधुनिक युद्ध में तेजी से बदलते खतरों के बीच देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना सुप्रीम कमांडर के मार्गदर्शन में एक अत्याधुनिक आत्मनिर्भर ताकत के रूप में उभर रही है। इन्फेंट्री यूनिट्स का बदल रहा है रूप। नवीन यंत्र और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा निरीक्षण में आई क्रांति की लहर। नैनो ड्रोन्स, उपग्रहों और विकसित ड्रोन नवीनीकरण द्वारा युद्ध में निपुणता अब बेमिसाल। नवीन संचार नेटवर्क और ड्रोन विरोधी साधन सुनिश्चित कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में प्रभुत्व। लॉजिस्टिक्स ज्यादा चुस्त और तेज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग भविष्य की तैयारी के आधार हैं। वर्तमान भारतीय सेना फुर्ती और परिणाम के बल पर अग्रसर आधारशिला है देश की सुरक्षा और एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की। कठोर प्रशिक्षण,
दिमाग और शरीर को तराशते हैं बेजोड़ ताकत वाले हथियारों में। आज वर्दी में नारियां मुख्य भूमिका निभा अटूट बाधाओं को पार कर रही हैं। धरती हो या आसमान या विशाल समुंदरों के आर पार, भारतीय सेनाएं संगठित आगे बढ़ती है। भारतीय सेना अन्य सैन्य बलों के साथ मजबूती से जुड़ एक बेहतर तालमेल बिठा निर्माण कर रही है राष्ट्र की सुरक्षा का एक अभेद्य कवच। भारत के लिए सदैव संगठित, हमेशा तैयार, हमेशा अपराजित। आपदा के समय हम सबसे पहले पहुंचकर जान बचाते हैं और आशाओं को फिर से जगाते हैं। सामाजिक प्रयत्न जैसे ऑपरेशन सद्भावना से हम भारत को सुदृढ़ कर रहे हैं। हम आदिवासी समुदाय को सशक्त करते हैं ताकि उनकी पहचान और आर्थिक समृद्धि दोनों बनी रहे। सुदूर इलाकों में सद्भावना स्कूलों और दिव्यांग बच्चों के लिए आशा स्कूलों द्वारा हम वंचितों से अच्छी शिक्षा और बेहतर अवसरों का वादा कर रहे हैं। आर्मी राष्ट्र निर्माण पहल जैसे एक पेड़ मां के नाम, हर घर तिरंगा और वाइब्रेंट विलेज का समर्थन करती है। सरहद की सुरक्षा से लेकर विकास को गति देने तक भारतीय सेना देश के मजबूत भविष्य की नींव रख रही है। सीमा से बैरक्स तक स्वदेशी नवीनीकरण भारतीय सेना की ताकत और कार्यनीति को बढ़ावा देता है। स्थानीय उद्योगों के साथ भागीदारी से प्रगति हो रही है, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हर कदम पर सेना आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। युद्ध के दौरान भारतीय सेना शांति के प्रतीक की तरह खड़ी रहती है। भारत से समूचे विश्व तक हम पहुंचाते हैं मानवता का संदेश, बनाते हैं गठबंधन और सुदृढ़ करते हैं रिश्ते देशों के बीच। युद्ध भूमि से लेकर ओलंपिक मंच तक सेना का नायाब जज्बा हर दौर, हर मुकाबले, हर जीत को संभव करता है। हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों का अदम्य साहस सबूत है कि कैसी भी चुनौती हो उसे पार किया जा सकता है। कठिन समय में भारतीय सेना वीर नारियों के साथ खड़ी है, न केवल कर्तव्यबद्ध बल्कि एक वचन के रूप में। सेना के पूर्व सेनानी भारतीय फौज के न सिर्फ अतीत के रखवाले हैं बल्कि स्तंभ हैं उसके भविष्य के भी। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनके अमूल्य अनुभव से सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय सेना एक ऐसी ताकत जो परंपरा से जुड़ी और अब भविष्य की तकनीकों से सुसज्जित है। सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर थार के तपते रेगिस्तान तक हमारे हौसले अडिग हैं। हमारा हर कदम प्रतिज्ञा है हिफाजत की, हर अभियान एक सबूत हमारे जज्बे का। शांति काल में हम निर्माता हैं, संकट में हम ढाल, युद्ध में हम विजेता हैं, रण में हम काल। भारतीय सेना भविष्य के निर्माता।